सर फूल दीजिए ना। हाँ फ्लावर फ्लावर खाइए ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद। सर फूल दीजिए ना। हाँ फ्लावर फ्लावर खाइए ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद। वहाँ में जी मैं अपना हाँ अरे फेरी 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 है ना। Some of the minority, Morcha President, Mr. Mujib Mia, and one more friend, Mr. Pagandro Rian, ST Morcha President. Yeah. So these are the 4 friends we have. So Tripura Morcha is open to all sections of our people of the state. And I, as the president of Tripura Morcha, extending my heartfelt joy and happiness that we have these 4 friends who go in each of us. And although we wish that the media is very good weapons and instrument, the citizen of our state who used to bring various issues in positive way. So today also I would request every one of you to explore the ongoing exercise of encouraging Tripura Morcha Party from different organizations, from different sections of the community. And we believe it will continue, and we have many other information, and we are trying to proceed and go ahead in whatsoever manner we have to face in adding more and more important people from different parties. And today we have our women force also, youth forces are also with us, who are actively working, exerting their strength and their wisdom that we continue in peaceful manner wherever people are resisting undemocratically. We still restrain and try to keep non-violence way of our movement so that we want to make a state of peaceful coexistence with all kinds of people of the state. So once again, I thank all of you so that we can share our joy by bringing this event through various channels of YouTube and local newspaper, national newspaper, even it goes outside the nation also. Thank you so much once again. Thank you, Adinabha, our chairman, Maharaj Pradeep Kishore Malika, our chairman.
Thank you, friends. I would like to welcome all the leaders who are joining us, respectively Mr. Kumar Halam, Mr. Darlong. We have Mr. Mujib Mia, we have Mr. Riyang Mia. The idea, हमारा idea क्या है कि तिपरा मोथा सबके लिए है. तिपरा मोथा has a clear direction that we are fighting for a constitutional solution for our people. And Tipra Motha, till the time we have no understanding in writing with anyone, we are willing to go out and fight on our own. It is a very clear statement. People like Kumar Halam, Mr. Darlong, were associated with Mr. Vijay Kumar Rampal. ये अभी नहीं, पहले भी they were together in TNP. बीजेपी में गए थे, लेकिन आज वो तिपरा मोथा उन्होंने वापस आने का उन्होंने एक डिसीजन लिया है. क्यों लिया है ये डिसीजन? क्योंकि आज हमारे तिपरासा लोगों को समझ में आ चुका है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने से आपका रियल सोल्यूशन का समस्या का हल नहीं निकलेगा. आज हमें एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसी के लिए मैं सबको अपील कर रहा हूँ कि अपने बारे मत सोचिए, अपने पोस्ट के बारे में मत सोचिए, अपने एमएलए-शिप के बारे में मत सोचिए, अपने पोजीशन के बारे में मत सोचिए. सबसे पहले अपने दफा के बारे, अपने तिपरासा के बारे में सोचिए. बहुत लोग लालच से, मैं उसको लॉलीपॉप बोलता हूँ, बहुत लोग वो लालच देखकर दूसरे पार्टीज में जा रहे हैं. लेकिन आप देखिए कि वो दूसरा पार्टी जो किसी को लेने की कोशिश कर रहा है, वो क्या ऑफ़र कर रहा है, कंक्रीट में क्या ऑफ़र कर रहा है, कंक्रीट में असली चीज़ क्या ऑफ़र कर रहा है. अभी तक मुझे सिर्फ एक दो शब्द ही का बात मालूम पड़ता है. डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल पैकेज, मोर फाइनेंशियल पैकेज. लेकिन आज तक किसी ने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि हमारे तिपरासा को, हमारे बुकुंग बारांदारगुन को क्या मिलने वाला. तो मेरा लाइन एकदम क्लियर है. वी वेलकम कुमार हालम, मिस्टर दारलोंग, मिस्टर मुजीब मिया, अपने रियांग बाबू. मैं सबको वेलकम करता हूँ. लामसो को भाई कहाम, आप लोग आए हैं और मैं आशा करता हूँ और आप देखेंगे आने वाले एक महीने के अंदर और बहुत लोग हमारे तिपरा मोथा में ज्वाइन करने वाले हैं. मैं आपको सबको बोलने वाला हूँ कि तिपरा मोथा अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता है. जो हमारा कमिटमेंट है वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे. और इस बार अगर हमको लगा कि कोई सीरियस नहीं है हमसे बात करने के लिए, तो ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग छोटा सा पार्टी है, बहुत लोगों ने बोला कि हम लोग चिकन पार्टी है. ये छोटा पार्टी भी अपना गांव में, पहाड़ में और पहाड़ के बाहर भी हम अपना ज़मीन में जो पावर है, जो अपना अधिकार है, उसको हम क्लियरली दिखा सकते हैं. हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं. हम लोग रेडी हैं. वी आर रेडी. वी मे बी अ स्मॉल पार्टी, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी intimidated by anyone. We may be a small party, but we have a big heart. We may be a small party, but we know how to fight. We may be a small party, but the last time elections were held, we won. So we are ready. If people come with us, most welcome. We love everyone. We are not against any community. We welcome every community. We welcome every religion. We are there for secularism. We are there for unity. We are there for all communities. But we will stick to our commitment towards our own. I would like, अगर तुम्हारा जी आपको कुछ बोलना है तो आप
I am demanding something which is unconstitutional, shouldn't I be arrested? If I am asking something which is breaking the law, then I should be arrested. There should be an FIR against me for demanding Greater Tipra land. But everyone knows that my demand is within the framework of the Constitution of India. Unless the Government of India, अगर कानून, हिंदुस्तान का सरकार एक नया कानून बनाता है कि आप ये डिमांड त्रिपुरा में नहीं उठा सकते हैं, पूरा इंडिया में उठा लो, लेकिन त्रिपुरा में अगर आप उठाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। जब तक ये नया कानून पार्लियामेंट पास नहीं करता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डिमांड करूँ। और CPM क्या बोला उन्होंने? You are making way for the CPM. I am making way for the CPM. CPM से सबसे ज़्यादा फाइट किसने किया है? CPM ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के पिताजी या CPM ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के ग्रैंडफादर को कभी अटैक नहीं किया। CPM ने मेरे परिवार को अटैक किया। तो जब तक प्रतिमा भौमिक को ये बात मालूम है तो ये बात उसको उठाना हल्का बात है। CPM ने अपना पूरा राजनीति मेरे फैमिली को अटैक करके किया है। प्रतिमा भौमिक के फैमिली को तो कभी अटैक नहीं किया, तो मैं समझूं कि उसके संग CPM का अंडरस्टैंडिंग है? नहीं ना। तो ये सब बात पॉलिटिक्स में, मंच में आदमी लोग बहुत स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनको ये सब बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको अपना पार्टी को भी एक रखना है, वो उनका कंपल्शन है, वो उनको बोलने दीजिए। मैं अपने लाइन में हूँ, मैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। Today we had a meeting with the Minister for DWS, Sushant Chaudhary. We discussed many things regarding drinking water. YTF, जो हमारा त्रिपुरा मोथा का यूथ फ्रंट है, हमने पिछले एक महीने में 1,12,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है गांव-गांव में अपने तरफ से। और आज जब रिव्यू मीटिंग रखा गया, सुशांत चौधरी द मिनिस्टर वॉज देयर इन ADC इन कुमुलो, हमने बात की कि आज जब हमारे पास फिगर्स आया है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ADC में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है घर में। उन्होंने खुद स्वीकार किया है और काम करना है, तो इसके लिए हम लोग ने कॉपरेशन के लिए बात किया है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे अंदर नहीं आता है ADC के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तभी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, सेक्रेटरी भी थे आज, कि आप हमें टैंकर्स का थोड़ा सुविधा दीजिए, कहीं में हमारा वाटर बॉडीज बनाने के लिए थोड़ा सुविधा दीजिए, क्योंकि आप ADC को अलग करके त्रिपुरा नहीं चला सकते। एंड द मिनिस्टर on his part agreed that we should work together. Minister, earlier also in a press conference he claimed that more than I think 300 tankers are working. He accepted that all parts are. Do you think under the Jal Jeevan mission how the work is going on? The government of Tripura's figure says that 50% of the household do not still have water. 50%. अब हाँ 50%। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का खुद का डेटा आज ये कह रहा है कि ADC में सिर्फ 50% लोगों को घर में नल है। अब उस नल में पानी भी आ रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना है, लेकिन ये उनका खुद का आंकड़ा बोल रहा है। अब आप देखिए, कोई प्यासा है, इतना गर्मी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप 4 महीने के बाद आपके घर में पानी आएगा। पानी तो आज चाहिए, वाटर इज़ लाइफ। और मैंने DWS मिनिस्टर को, और उन्होंने भी मेरा बात एग्री किया है कि पानी के नाम में, पीने के पानी के नाम में राजनीति नहीं होना चाहिए। प्यास सबको लगता है, प्यास सबका बुझना चाहिए, एंड वी आर देयर टू हेल्प एनीवन व्हेन इट कम्स टू वाटर। जब कोविड हुआ हमने एक संग काम किया, अब पानी का ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, हमें एक संग काम करना चाहिए। कुछ चीज़ राजनीति से ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं इसमें पॉलिटिक्स को लाने का कोशिश भी नहीं करूँगा। मैंने अपने YTF वॉरियर्स को कहा है कि जब तक पीने का पानी गांव में नहीं आता, आपका काम है कि जाकर गांव-गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट करें। पैसा हम देंगे, पानी का प्रयोजन हम करेंगे। आप अभी हमारे लोगों को मत पूछो कि कौन त्रिपुरा है, कौन CPM है, कौन BJP है, कौन कांग्रेस है, कौन तृणमूल है, कौन IPFT है। आप जाकर उनको पानी दीजिए, पीने का पानी दीजिए और अपने ADC एरिया में काम करिए। Any commitment given by when this
They will issue few office orders 2 दिन के बाद. We will wait and see what is their commitment. Let it come in writing. Then I will share it with the media, and I think even the state government will share it with the media. पर आपके इंटरव्यू के ऊपर कुछ कंफ्यूजन हुआ था. Can you make it clear in what context it was given? And another, you had after that appeal for other political parties also to come together. What has been the response of that? Response is very good. रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, और मैं आशा करता हूँ कि IPFT जो जिसका डिमांड भी हमारा जैसे ही 99.99% हमारा दोनों का डिमांड एक ही है. तो मैंने उनको कहा है कि आप अलग क्यों डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सब एक होकर आते हैं, बात करते हैं. मैं मेवाड़ को बचपन से जानता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं उनके MLA को भी जानता हूँ. आपको किसी को चिंता करने का दरकार नहीं. हम लोग सब एक संग बैठकर एक आवाज़ अपने लोगों के लिए दिल्ली में जाकर बात करते हैं. इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. पहले अपने दफा को सामने रखिए, अपने कम्युनिटी को आगे रखिए, अपने डिमांड्स को आगे रखिए. पॉलिटिक्स चलते रहेगा, लेकिन अपने लोगों का सुरक्षा के लिए हमको एक संग एक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना चाहिए. उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में वो अपना डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे. And what about Delhi part? Are you trying to contact Home Minister? मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ होम मिनिस्टर को. I'll write a letter, और वो लेटर को भी हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमारा जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आप लोग उसमें हमको निमंत्रण दीजिए. हम लोग राइटिंग में ये बात करना चाहते हैं. हम पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं. तो जो भी होगा मीडिया के सामने होगा, पब्लिक के सामने होगा, कोई साइलेंट या सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और रहा बात माय स्टेटमेंट का, मैंने ये कहा था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं तो कोई बोलता है आप 1300 करोड़ ले लो, 1500 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो. तो ये 2000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहा है पैसा? पिपरासा के पास तो नहीं जा रहा है. ये पैसा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास या पॉलिटिशियन के पास. तो मैंने कहा था कि आप अगर सीरियस है तो आप नौकरी अनाउंस कर दीजिए 1 साल के अंदर, तब हम बात करेंगे. लेकिन आप वो अनाउंस नहीं करते, आप सिर्फ पैकेजेस अनाउंस करते हैं. वो पैसा 1949 के बाद ADC में, ADC तो था नहीं, लेकिन त्रिपुरा में जनजाति एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स निकाल देंगे, बोलेंगे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़. लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है, पॉलिटिशियन के पास जा रहा है. तो मैंने कहा था कि वो 2 लाख करोड़ आप बेफजूल में ना खर्च करके आप नौकरी दे दो, तब हम बोलेंगे कि चलो आपका सीरियस है. लेकिन एक लाइन को आधा, आपने इंटरव्यू लिया था, एक लाइन को आधा लेकर सोशल मीडिया में, आपको मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, लेकिन उसको काट के किसी का IT सेल कहीं में और चलाकर, हम लोग अनपढ़ गवार नहीं रहे. जो अभी आपने किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, आप डिबेट कर लीजिए, मैं रेडी हूँ कि हमारा डिमांड इलीगल है कि नहीं, आप डिबेट कर लीजिए. और ये कि मुझे सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मैंने आज तक नहीं कहा. मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ, अगरतला में बैठ के आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज गो बैक टू बांग्लादेश. जिसने कहा वो उनके पार्टी में, मैंने आज तक नहीं कहा. मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं हिंदू बंगाली को बांग्लादेश वापस, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, मैंने आज तक वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने किया, वो उनके पार्टी में. तो मुझे ये फैमिली जो है, शेख हसीना ने हमें सम्मान दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मान दिया. जब युद्ध हुआ, जब कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थी को रखा, हमने रखा. मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, मैं क्यों हिंदू बंगाली को खिलाफ जाऊँ? लेकिन मेरा हिंदू धर्म क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं, बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं. तो ये जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, वो लोग का राजनीति अलग है, और हम लोग महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत में चलते हैं. तो ये जो पूरा पोर्ट्रे किया गया है मीडिया के सामने कि हम लोग एंटी बंगाली है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी बंगाली कम्युनिटी के खिलाफ या कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, और ना कहूँगा भी.
ये राजनीति किसी और ने की और उस राजनीति जिसने किया उसको आपने अपने संग रखा है। तो जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए आज जो हमारा डिमांड है, मैंने हताई कतौर में, बारामूला में मैंने रोड ब्लॉकेट नहीं किया है। जब से एडीसी पावर में आया है, कहीं में भी एक भी बंगाली हो उसके घर में, या मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो या किसी के घर में भी अत्याचार नहीं हो। आज तक हम ने एक दिन भी बंद का कॉल नहीं किया। तिपरा मोथा ने आज तक एक बार बंद का कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसका दुकान है, जो डेली लेबरर है, उनको बहुत कष्ट होता है। मैंने क्या बोला है? हमने कहा कि गिव अस मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। मैंने नहीं कहा है कि बंगाली का नौकरी निकाल के तिपरासा को नौकरी दे दो। मैंने कहा कि बंगाली का नौकरी भी दो, हमारे तिपरासा को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और नौकरी दो। मैंने कहा कि हमारे गांव में पानी दो। मैंने नहीं कहा कि उस बंगाली के गांव के नल को बंद करके तिपरासा विलेजेस में पानी दो। मैंने कहा वहाँ भी पानी आना चाहिए और यहाँ भी आना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा त्रिपुरा के लिए अच्छा नहीं है। और मीडिया को भी निडर होकर, ब्रेव होकर आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने आज तक अपने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को, जिसको व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने आज तक उसको बांग्लादेशी नहीं कहा, किसी और ने कहा। तो आप सवाल उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मुझे सर्टिफिकेट देने का कोई दरकार नहीं है। मैं त्रिपुरा में बंगालीज, तिपरासास, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी, कोई भी कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट, सबको एक संग देखना चाहता हूं। और हम लोग कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कहाँ था 20 साल पहले, वो लोग कहाँ थे 20 साल पहले? जो लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा में नहीं था, तो मैं तो त्रिपुरा में नहीं था, और लोग भी त्रिपुरा में नहीं थे, आज है त्रिपुरा में। उनका पार्टी कहाँ था 20 साल पहले? हम लोग फाइट कर रहे थे सीपीएम से, 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो। हाँ, हारे, लेकिन हम तो फाइट कर रहे थे। उस समय वो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे थे? तो ऐसा आरोप करना विदाउट होमवर्क, और वरना आपको डिबेट करना है तो आ जाइए न्यूट्रल वेन्यू में। डिबेट करना है तो आई एम रेडी फॉर अ डिबेट। पब्लिक डिबेट करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू में करिए डिबेट। हम अनपढ़ गवार नहीं है। I have also spoken at Harvard University. I am also going to London to speak at Oxford. I am also meeting the British parliamentarians. I am speaking at the Bridge India conference. I am not an uneducated person. So have a civilized debate with me. We are ready, respectfully. I will be very respectful. But have a civilized debate. Do not throw allegations which do not stick. I have one more question about the recently the Chief Minister has quoted that he is not satisfied the way the rehabilitation of the young people are going on. Are you aware of that? I am aware of it. He has also met the Home Minister. The Home Minister and the Chief Minister of Tripura, the Chief Minister of Mizoram, myself, we worked very hard for the rehabilitation of our Bru brothers and sisters. Today, the Bru people have not been given proper rehabilitation. This rehabilitation has to be made all right. This cannot be linked with elections. A Bru person who was a domicile of the state had to leave because of Dumbur, had to leave because of riots, has a traditional link with Tripura, has to be given proper rehabilitation. So the Chief Minister, I appreciate that he said that Bru को अच्छी तरीके से रहना चाहिए. I appreciate. लेकिन rehabilitation process में chairperson कौन है, वो आप थोड़ा फाइंड आउट करके मालूम कर लीजिए. और मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम है और वो मेरे ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. वो आप बीजेपी से पूछिए. एनी लास्ट क्वेश्चन? ओके, गलाई गलाई नो हम बाय. आई वेलकम एवरीवन. और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि त्रिपुरा मोथा विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. एंड आई अपील टू ऑल कम्युनिटीज इन त्रिपुरा, please live in peace. We want development. We are not against anyone. Galai no hum.